We have Praveen. Thank you so much for coming, Praveen. Thank you. A round of applause. Yes. Especially on a Monday, to be able to come down takes a lot of commitment, and ये अभी कर लेंगे. So, especially on a Monday, it takes a lot of commitment to come down, leave all your work, etc., etc. So, Praveen, why don't you come up on stage and share your experiences and the questions that you have. I think some of it Praveen can start answering. And what's your name? Kirti. And Kirti is she works as a started as a PC. Okay. Now you can ask whatever. Okay, she works as a process coordinator and now she is at a senior level, much senior level. So later on you can ask her questions and I'm sure she will be able to educate you. So Praveen, why don't you take over rather than me? What do you do? First of all, thank you all of you and thank you Rahul ji for inviting me, and a pleasure to be here to share with whatever I've done. So thank you very much. I'll share everything. So let me introduce myself. My name is Praveen Khandelwal. I am 37 years old. I started my business in 2004 from zero. Mike, yeah, pass me. And I have two daughters. My business is of cleaning aids. We manufacture cleaning aids, and I have around 7 units pan India. Around 700 stockists, and product range is around 12. SKUs are around more than 90. The revenue is you can say for few products we are the largest in the country. So what kind of products you have? Cleaning aids meaning? जो हम वैसे तो just we help people to be hygiene and clean, और देसी भाषा में बोले तो हम घर के बर्तन मंजवाते लोगों के. It's clean up, Pranay's clean up. Yeah. There are rivals. So they specialize in green. We are largest in steel. उसी का आपके घरों में अगर किसी ने lot of females are there जो एक steel scrubber होता है जो जूना. Exactly. Yeah. Manufacturing. I have 6 units in here and 1 unit in China also. So this is my product profile. And my company name is Pranay Impex Private Limited. Yeah. So we have completed our BMP program in last March. So before BMP, life, it was like जैसी आपकी अभी हो रही होगी या पहले थोड़े दिन पहले होगी. It's all of firefighting. I reach office around 10:30. कोई टाइम नहीं था. सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठना, ये बच्चों पे गुस्सा करना, और काम होता है नहीं होता. बिकॉज एक्सपेंशन तो 2004 से चली रही थी, लेकिन वो बस एक जगह ऐसा आ गया था कि अब लग रहा था अब बंद, आगे कुछ नहीं करना अब, क्योंकि अब मेरे से नहीं संभलेगा. दैट वाज द थॉट प्रोसेस. आई बाय एट दैट टाइम, एंड समहाउ वन ऑफ माय फ्रेंड, रात को उसका फ़ोन आया कि यार कल से कोर्स में जाना है, वेरी नियर वेरी फास्ट. मैंने कहा भाई मुझे अब नहीं पढ़ना लिखना, मैं ठीक हूँ, अभी यही नहीं संभल रहा, तू एक नई पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है. उसने कहा कि भाई मैंने कह दिया चलना है. इफ लॉट ऑफ माइट भी पीतमपुरा के लोग अगर यहाँ नॉर्थ दिल्ली के हो, तो मेरा एक फ्रेंड है ओढ़नी साड़ी, अगर किसी ने सुना हो, पुनीत. समाउ बस सुबह उठाया और आ गए. कुछ नहीं पता था हु इज राहुल जैन, क्या कैसा कुछ पता नहीं, और सुबह उठा और बोला जी एनरोल कर दिया, पैसे भी मैंने दे दिए, तेरे चल. हम आ गए. और वो यतिन और पुनीत भी ऐसे थे. हाँ. उनको नीरज ने बोला था तुम जा रहे हो, चैप्टर क्लोज्ड. मतलब लिटरली कुछ नहीं पता था. आपको तो पता नहीं, इंट्रोडक्शन भी किया होगा मैंने, वो आपका डीवाईपी वाईपी कुछ नहीं किया था. रात को 10:30 फोन आया और सुबह 9 बजे हम यहाँ थे. इट वॉज लाइक दैट. समथिंग बाद में समझ में आया कि मैनिफेस्टेशन का पार्ट था. पहले तो वो भी नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है. So this is how I started, and just my business journey. I started in 2004. I said you. I came to Delhi in 1997. My parents used to live in Nepal. I came to Delhi. I started my education, then my post graduation, and 2004 में मैंने business चालू किया. मेरा post graduation 2002 में ख़त्म हो गया था. 2 साल के बाद मैंने business चालू किया. उससे पहले मैंने छोटी मोटी trading ये वो सब करके. So this was all before BMP. After BMP, huge lot of changes what Rahul sir can see. And अब मेरे 7 प्लांट है, मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूँ. सिर्फ मंगलवार EM के दिन जाता हूँ और होल डे
और बाकी कोई दिन नहीं आता. और फ्राइडे वी हैव ए वेंडर डे, वी मीट ऑन दैट. इफ देयर इज अ वेंडर्स मीटिंग प्लान्ड ऑन दैट डे तो वो इवेंट उस दिन जाता हूँ, बाकी कोई दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ. और पहले क्या होता था? पहले क्या होता था, कीर्ति बता सकती है पहले क्या होता था मेरे से ज़्यादा. पहले 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचता था और 7 बजे जनरली ऑफिस का टाइम खुला था. मैं और मेरा 2 अकाउंटेंट और हम लोग 8:30, 9, 9:30 तक बैठे रहते थे. मतलब सेल्स वालों से लड़ाई कर रहे हैं, डिस्पैच वालों से कर रहे हैं, अकाउंट्स वालों से कर रहे हैं, इसका पैसा नहीं, उसका माल नहीं, इसका ये नहीं. और मतलब कितने प्लांट्स थे उस समय? पार्डन? कितने प्लांट्स थे? प्लांट्स उस समय मेरे 4 थे. 4 थे 5. हाँ, तो उसका 2 बड़े. प्लांट्स में भी जाना पड़ता था? तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्राइम कर रहा हूँ. अंदर में जा नहीं पाया क्योंकि मेरा ऑफिस अलग था और बाकी प्लान्स अलग अलग थे. तो मैं कभी जैसे रोज एक मन में रहता, आज इसमें जाऊंगा, कल उसमें जाऊंगा, परसों उसमें जाऊंगा, और ऐसा लगता था हो नहीं पा रहा था. वन ऑफ माई प्लांट इज इन सोनीपत, 1 इज इन महाराष्ट्र अकोला, 1 इज इन पटना, 3 एट दिल्ली इन बवाना इंडस्ट्रियल एरिया. और एक मेरा जो शुरुआत मैंने जहाँ से करी थी, छोटा सा यूनिट है, नाहरपुर है रोहिणी में, वहाँ से. दैट इज वेयर आई स्टार्टेड 2004. सो वहाँ से मैंने शुरू कर दी 6 एम्प्लॉयज़. Now we are employing 450 people with us. 450 लोग हमारे पास काम करते हैं. वो फायर फाइटिंग अभी भी चल रही है. कोई नहीं. हाँ. So let him complete if you have. आपके फोन की वेट कर रहे हैं. Thank you sir. हाँ. So we started the 6 members team. अब हमारे पास करीब 450 आदमी हैं. मेरे ऑफिस में 20-25 लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम पीसी, सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, इस तरह के लोग जो भी हम बोलते हैं, whatever language you have, EA and rest of the people. 92 we are in sales and rest of it in the production. This is how. वर्कशॉप के बाद क्या रिजल्ट्स निकले, क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, इन्वेंट्री? We have another mic with us? हाँ? We have another mic with us? हाँ. क्योंकि मैं बताऊंगा ना, she has taken care of 3. I think she will be able to tell more. नंबर मालूम है? नंबर भी बताओगे इसका? आओ. आप अभी क्या कर रहे हो ये बता दो, और आपने कहाँ ज्वाइन किया था, क्या कर रहे थे, और आपने कब ज्वाइन किया? क्या ज्वाइन किया? She is, let me introduce her. She is Kirti. And feeling very uncomfortable standing on the पहली बार stage. मुझे लग रहा है कि इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोल रही होगी. She is my PC. She started 2.5 years before. Mike. She started 2.5 years before. Yes. ठीक है. जब आपने शुरू किया था आप क्या कर रहे थे? I just cleared 12th. 12th कंप्लीट किया था? Yeah, I'm pursuing BCom honors 3rd year now. अभी 3rd ईयर में हो? Yes. ओके, एक्सीलेंट. क्या उम्र है? I'm just 20 years old. 20 years old. वेरी नाइस. सो बताओ जी, अब वो सारे सिस्टम्स लगाने के बाद अभी क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा बता पाओगे, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? बता ही दूंगा, बट मतलब they will able to hear from the जो काम कर रहे हैं उनके मुंह से सुनेंगे तो आई थिंक दे विल एबल टू रिलेट मोर. बिल्कुल, कंपनी अच्छे से सिस्टम से चल रही है. पहले सिस्टम्स हमने मतलब सर पहले पूरे दिन ही ऑफिस बैठा करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं. इट जस्ट कि हाँ ट्यूसडे हमारी ईएम होती है, ईएम लेने भी आते हैं, और उसके बाद भी शायद शेड्यूल होती है इनकी मीटिंग, और फ्राइडे हमारी वेंडर मीटिंग होती है जस्ट फॉर दैट. उसके बाद और नहीं आते हैं, बहुत रेयर आ गए तो आ गए. और हमारे सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. प्रोडक्शन हमारी 100% इंक्रीज हुई आफ्टर सिस्टम्स हमने डेवलप करे तो. वाओ. सो दैट मीन्स हमारी प्रोडक्शन डबल हो गई. यस एग्जैक्टली. कौन से प्लांट में कि ओवरऑल कंपनी में? होल कंपनी प्रोडक्शन मतलब नाहरपुर में होती थी, मतलब नाहरपुर में होती है. हमने वहाँ पे भी 100% करी, एंड महाराष्ट्र में हमने 100% इंक्रीज करी, एंड जो टाइम था वो भी कम करा हमने. कितना? 2 शिफ्ट लगती थी, वी हैव जस्ट कि 1.5 नाउ. So now what she is trying to say कि हमने 100% प्रोडक्शन आप करी, 2 शिफ्ट पहले चलाते थे, अब 1.5 शिफ्ट में 100% प्रोडक्शन आप. यस. पहले अगर 100 यूनिट बनाते थे 2 शिफ्ट में, हाँ, अब 1.5 शिफ्ट में 200 यूनिट. 1.5 शिफ्ट में 200 यूनिट बनाते हैं. सो इवेंचुअली इफ यू मार्क इट आउट हाउ मच ड्रास्टिक इट इज देयर. और इन्वेंट्री कितनी बड़ी? इन्वेंट्री तो सब लाल में रखते हैं हम पीले में भी नहीं रखते.
सो अभी इन्वेंट्री वो समझ में नहीं आएगा अभी। तो इन्वेंट्री का सिस्टम शुरू नहीं किया हमने आपके साथ। इन्वेंट्री कितनी So my working capital, inventory means working capital drastically come down, और inventory sheets जब से हमारी ऑन हुई है उसके बाद तो उसका तो बिल्कुल इन्वेंट्री एज कम, प्रोडक्शन आप समझो ऐसा समझो डबल हो गई, और इन्वेंट्री वहीं की वहीं है या उससे 20% नीचे आ गई सेम इन्वेंट्री में। ओके, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। दैट इज वन पार्ट फ्रॉम दैट। What else are the results? In numbers, what are the results? So you're saying production has doubled in the same. See, when production is doubled, capital investment कितना किया डबल करने के लिए? प्रोडक्शन डबल करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 0। और लेबर कितनी बढ़ाई? 0। नो लेबर इंक्रीज, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो कैपिटल। ये आदमी मेरे से भिड़ गया था जिस दिन मैंने बोला था तेरी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, कहता सर ऐसे थोड़ी होता। रिमेंबर दैट डे? आई रिमेंबर, एवरी टाइम आई वाज द फर्स्ट वन इनटू दैट। यस सर, 20-30% ठीक है, समझ में आता है सर, डबल की क्या बात कर रहे हो? एक ये भिड़ गया, कहता सर डबल नहीं होगी। यस, बिल्कुल, कंप्लीटली एड ऑड्स। नो सर, डबल नहीं हो सकती। इस यूनिट में कहां से हो सकती है? हमें ये लगता था कि भाई ये तो पूरी पैक चल रही है हमारे साथ, एकदम परफेक्ट चल रही है, यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है। अभी कहाँ 10-20% हमने कहा चलो सर हिला देंगे, इधर उधर कर देंगे, कुछ मैनेजर्स हम पहले करते थे तो हो जाएगी, इट विल टेक ऑन टू अराउंड ठीक है 20-30%, बट नहीं, यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट। हालांकि मैं बिल्कुल बैच के साथ चलता था, आई हैव नेवर बीन लेट टूवर्ड्स इन द वर्क व्हाट एवर इज गिवन बाय राहुल कि भाई हम कभी भी, बड़ी में लगता है। लेकिन और ये ऑटो पायलट तो मार्च खत्म होते थे ही कर लिया था हमने। आई हैव डन ऑटो पायलट ऐसे कोर्स खत्म हुआ, आई वाज एन ऑटो पायलट, डिक्लेयर्ड टू हिम दैट आई एम एन ऑटो पायलट। सो व्हाट हैपेंस, जब रेवेन्यू भी डबल हुआ, मैं पहले क्या था, रॉ मटेरियल भी बेचा करता था। आई यूज्ड टू सेल द रॉ मटेरियल आल्सो, बट जैसे जीपी और इसकी बात हुई, अभी सर पूछ रहे थे, सो वी थॉट दैट लेट्स नॉट, राहुल से भी मेरी बात हुई, हमने मिले, हमने कहा राहुल ये एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसमें हमारी जीपी बिल्कुल बहुत कम है और ये है, तो हमने कहा इसको बंद कर दो। सो पूरा फोकस उस पर बंद कर दिया। जब प्रोडक्शन डबल हो गई तो वो प्रोडक्ट्स बेचने लग गए विद हाई जीपी, तो रॉ मटेरियल की सेल ऑलमोस्ट 0 हो गई, ऑलमोस्ट ना के बराबर, विच आई हैव अ वेरी बिग शेयर, मार्केट शेयर मेरा बहुत बड़ा था, हमने बिल्कुल 0 कर दिया। लोग जो हमारे मार्केट में जो रॉ मटेरियल, पता नहीं प्रवीण जी को क्या हो गया है, धंधा बंद कर दिया है क्या, मतलब दे यूज्ड टू, जो लो जीपी प्रोडक्ट था वो बंद कर दिया, बट वो स्लोली बंद किया। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जब आ गया था, क्योंकि वो उसमें और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल डालना पड़ता और जीपी नहीं था, तो फिर हमने उसके बाद क्या किया कि व्हाट वी हैव डन, रेवेन्यूज वहीं की वहीं रखी। फॉर एग्जांपल मैंने 50 करोड़ की सेल करता था, मैं 50 करोड़ की सेल ही करने लगा, बट द जीपी एंड एनपी हैव रोज ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, because you filled up the GP sheet, understood and phased out low GP product. वो phased out low GP product, same revenue, same capital, same infrastructure, same capex, same people, सब कुछ में आपने अपना NP को almost 1.5 times से ऊपर कर लिया। So I have increased that, everything in the same infrastructure, increased it. And then after that production also doubled. प्रोडक्शन साथ साथ डबल होती चलेगी, तभी तो प्रॉफिट बाद में डबल हुआ ना। प्रॉफिट, एक तो ये पार्ट हो गया कि आपने लो जीपी प्रोडक्ट बंद कर दिया, हाँ, तो प्रोडक्शन डबल होती गई, हाई जीपी प्रोडक्ट ऑन कर दिया, हाँ, और उसके बाद प्रोडक्शन भी डबल कर गई। ये दो अलग चीजें हैं कि सेम चीजें? नहीं, जब लो जीपी बंद किया तो प्रोडक्शन हमारी बढ़ने लग गई, तो सारा फोकस हाई जीपी पे चले गया और प्रोडक्शन वालों पे चले गया, तो जो लो जीपी की सेल थी वो कटी, तो उतनी सेल इस प्रोडक्ट ने ले ली। फॉर एग्जांपल मैं ये बेच रहा था, इसको बंद किया और ये बेचने लग गया, तो इसकी सेल बढ़ गई, और इसकी सेल बढ़ गई तो वो जीपी काफी बढ़ गया उसका, तो उससे एनपी भी। और पहले आपका क्या विचार था कि ये वाला प्रोडक्ट बिक सकता है, नहीं बिक सकता? सेल्स वाले पहले क्या बोलते थे, ये सर ये वाला प्रोडक्ट की तो सेल नहीं है। सेल्स की तो स्टोरी बहुत सारी है, वो तो कहते हैं सर बिकता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि ये वाला माल तो बिकता नहीं है। हाँ। ये तो हाई जीपी प्रोडक्ट है। आपके हाई जीपी प्रोडक्ट 20% बिकते हैं? हाँ, लो जीपी प्रोडक्ट 80% बिकते हैं, हाई जीपी प्रोडक्ट कम बिकता है। और जब सेल्स वालों को बोलो कि हाई जीपी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाओ तो क्या बोलते हैं? आपके क्या बोलते थे? बोला सर पता नहीं, वो मेरे को कहते थे सर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, कंपनी को बंद करने का इरादा है क्या?
they used to come and say me कि आप सर कंपनी को बंद करना चाहते हो क्या? मैं सेल्स वालों से बात ही नहीं करता था. मैं बोला भाई मुझे 1 साल चाहिए, पहले मुझे ऑपरेशंस पे बात करने दे. मैं तो 1-1.5 साल तो सर ने बोला सर आप लोगों ने मुझे अनाथ बना दिया, हमसे बात ही नहीं करते हो. They used to call them and all that. क्या हो गया है सर को, समझ ही नहीं आ रहा है. I just give me 1 year, after that I enter into your sales. But eventually 6 महीने बाद ही मैं घुस गया था. और अभी भी सेल्स में तो हम बहुत डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं. Awesome. And वो अभी आप प्रोग्राम खत्म हो गया, अब प्रोडक्शन प्लानिंग आपने, जब प्रोडक्शन प्लानिंग हम लोगों ने शुरू की थी तो प्रोडक्शन प्लानिंग आपने अपने हाथों से की थी? बिल्कुल. कैसे करता था बताओ? आई थिंक कैसे मैं करके लाता था और कैसे आप करते? प्रोडक्शन प्लानिंग जब हमने शुरू की थी, इन्होंने पहले प्रोडक्शन प्लानिंग कौन करता था? प्रोडक्शन सुबह में करके लाता था. नहीं, उससे पहले. अच्छा, बिफोर वी स्टार्टेड प्रोडक्शन प्लानिंग, बिफोर बीएमपी मैं ही करता था सब कुछ. प्रोडक्शन प्लानिंग सब कुछ, 4-5 प्लांट्स की, सब कुछ सारे अभी तो पूरा 10 से लेके शाम तक भिड़े रहते थे. रोज की फायर फाइटिंग, प्रोडक्ट वाइज, इसका वेंडर का नहीं आया, उसका वो माल नहीं आया तो उसका रुक गया, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो. और फिर स्ट्रक्चर में जब आपने प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू की तो अब स्ट्रक्चर में कौन करता है? पहले मैं करती थी, अब आई हैव डेलीगेटेड टू समवन एल्स. प्रोडक्शन प्लानिंग, आई हैव. प्रोडक्शन प्लानिंग करते थे आप? हाँ जी. मतलब आप इंजीनियर हो? नहीं, सर ने सिखाई. मतलब सर पूरा मॉर्निंग में पहले मतलब ऑफिस 8 o'clock आते थे एंड वो अपना 4 o'clock जाते थे काम करने के लिए एंड वो पेपर में लिख के लाते थे एंड उसके बाद मेरे को दे देते थे और मैं उसको पूरा दिन आई वाज कि वहाँ कंप्यूटर में उतार के उसके बाद आई हैव डन प्रोडक्शन प्लानिंग. हाँ जी. तो प्रोडक्शन प्लानिंग बीच में उसके बाद ये निकल गया प्रोडक्शन प्लानिंग से? तो मैं देखता भी नहीं हूँ. हाँ जी. आप करते थे पूरी कंपनी के? कितने प्लांट हैं? 6 प्लांट की प्रोडक्शन प्लानिंग आप करते हो? यस. और अब आपने डेलीगेट कर दी? यस. पास कर रहे हो 3rd ईयर में? ये 1 साल पहले की बात है. सो गाइस, हाँ प्रेशर कुकर मिलेगा इसके बाद. हाँ, तो प्रेशर कुकर मिलेगा इसके बाद इन दोनों को. अच्छा, सो गाइस, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि जब आपको मैं बोलूंगा कि आप अपने हाथों से प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे, आप उछलोगे, और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा आपकी पीसी प्रोडक्शन प्लानिंग कर लेगी आपकी पूरी कंपनी की, तो आप बोलोगे ये, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये होता है और आपके साथ. लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर मान लो इफ यू वांट टू ट्रेन पीपल लाइक कीर्ति, अभी कुछ सर कह रहे थे लग रहा है पैसे देके बुलाया है. हाँ, लग रहा है, मतलब व्हाट इज ट्राइंग टू से कि पैसे देके बुलाया है. वो सर आपको एक दिन ऐसे आएगा और आपको भी ऐसे लगेगा पैसे देके बुलाया है. सो बट आप स्टेज पे खड़े होगे, बट उसके लिए क्या होगा, जो 1 साल की रिग्रेस, मतलब वो कंफर्ट जोन कौन से लेवल के नहीं तोड़ने पड़ेंगे आपको, वो आपको इफ यू वांट टू बी एट द सेम लेवल आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, यू वांट टू ट्रेन पीपल अराउंड ऑन योर, सो व्हाट ही सेज, जस्ट ब्लाइंडली डू इट, जस्ट ब्लाइंडली डू इट एंड गो विद द फ्लो ऑफ द कोर्स. नॉट कि इसको मैं कल कर लूंगा, कल कर. प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपका सिस्टम, मतलब ये MIS तक पहुंच जाएगा, आप पीसी पे रहोगे, राहुल विल गो इनटू सेल्स एंड यू विल बी एट द डेलीगेशन या EA या EM कहीं पे भी रहोगे. सो द व्हाई वी आर एबल टू डू इट इज राहुल विल बी एबल टू टेल बेटर. हम बिल्कुल कोर्स में मैच करके चलते थे. इनकी प्रवीण जी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मेरे जिया जी के साथ ही बैठ के हैं, एंड माय राकेश बंसल. ओह, राकेश बंसल. अच्छा, नितिन बंसल. ओके. इतनी तारीफ इनकी करते हैं ना कि मतलब ही इज स्पॉट ऑन. एवरीथिंग दैट राहुल इज टीचिंग ही इज इम्प्लीमेंटिंग डे 1 ऑनवर्ड. सो आई थिंक सिंसियरिटी. थैंक यू, आपने बचा दिया मेरे को, नहीं तो वो भैया सच्ची सोचते कि पैसे देके बुलाया. थैंक यू वेरी मच. राहुल बच गए आज तो. पता लग गया प्रेशर कुकर नहीं मिलने वाला. Okay, so but one of the things that helped you do this, when to be able to implement all of this, how did you manage to implement all of this? Because there's a lot of work. So what? The one thing, the day you announced that 4 AM करना है, I think course
देखिए 2 महीने बाद बोला था शायद, शुरू होने के बाद। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ जो भी मतलब जब है तो उस दिन से ठान लिया था कि मुझे करना है, और मैंने ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल हो गया होगा करते करते। सो दैट इज़ द वन दैट वंडर हुआ मेरे लिए। मैं सुबह 4 जाता था रोज, सुबह हाथों से काम, मैं आई एम नॉट मच कंप्यूटर फ्रेंडली गाय, मैं पेपर और शीट लेके आता था। धन किसी भी क्राउन, अगर कोई रोहिणी में जाता है क्राउन प्लाजा में, किसी भी होटल में, प्रवीण खंडेलवाल, तो वो सुबह बोलेगा सर सुबह 4:30 बजे आ जाना, मिल जाएंगे आपको। सो वहाँ पे मैं पेपर पे दिन काम करता था, और 10 बजे फिर मैंने 8 AM बंद कर दिया। आई यूज टू गो दैन 11 AM ऑफिस, और उसके बाद जो है इनको दे देता था, और दे यूज टू इम्प्लीमेंटेड। शाम तक ये मुझे इम्प्लीमेंट करके दे देते थे सिस्टम्स पे। दिस इज हाउ वी वर्कड। तो नहीं, हाँ आप बताओ, रेजिस्टेंस आता था? आप रेजिस्टेंस में क्या करते थे? रेजिस्टेंस आता था नहीं आता? जब शुरू में, सॉरी, शुरू में जैसे मैं बोलता था तो कैसा लगता था पूरा ऑफिस को? हाँ, बहुत अजीब सा लगता था कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने भी इम्प्लीमेंट करने लगा, बट हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है अपना सिस्टम। तो क्या रेजिस्टेंस आती थी? दूसरी टीम वाले क्या स्टार्टिंग में लिटिल बिट आई थी, बट उसके बाद हमें पता लग गया था कि हाँ हमने करना है, तो प्रवीण जी ने कहा है तो करना है, दैट्स इट। कितना टाइम लगा कॉप अप करने में रेजिस्टेंस को? फॉर मी आई एम लिटिल बिट फॉर्चुनेट इन दिस कि मेरी टीम जो है ना बहुत यंग है, मतलब मैं सबसे, आई एम द ओल्डेस्ट मैन इन माई कंपनी। सो एंड आई डोंट हायर पीपल हु आर ट्रेन्ड, सो इट्स फ्रॉम डे वन। सो समथिंग वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड देन थिंग्स हैपन। सो थोड़ा टाइम लगता था, सर ये हो नहीं पाएगा, जैसे सर ने मैंने कहा कि हो नहीं पाएगा, वैसे वो भी कहते थे। सो आई जस्ट से देम ब्लाइंडली डू इट, लेट्स सी द रिजल्ट्स लेटर, लेट्स डू द ओनली एक्शंस, रिजल्ट पे अभी देखते नहीं है। सो वी यूज्ड टू डू द एक्शंस ओनली, एंड धीरे धीरे वो बहुत जल्दी अलाइन हो गए। मेरे केस में पीपल अलाइंड वेरी वेल, बहुत लोग बहुत जल्दी से अलाइंड हो गए थे। तो बिकॉज आई थिंक क्योंकि यंग पीपल थे, और दे मतलब फॉर माई कंपनी वाइल से देयर इज अ 0 रिट्रेंचमेंट टिल डेट। आज तक छोड़ के कोई नहीं गया मेरी कंपनी को, ऐसे नहीं गया ना आज तक। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट रिलेट टू अदर्स। तो सुबह 4 बजे जाके क्या करते थे सर एग्जैक्टली? वो समझ में नहीं आता। काम देते थे ना ये इतना सारा। अब इन्होंने बोला कि FMS बनाओ फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए मना कर देते हैं सर कि वो जो भी फ्लो शीट्स बनानी है या FMS बनाना है तो वो फ्लो में बनाना है, तो दिल्ली में नहीं, या मतलब नहीं, वो होटल चेक इन करके बना लो, और होटल चेक इन करके जो बना रहे हो 4 बजे भी बना लो। इसमें क्या मैं बताता हूँ, सर बोलते थे आपको आउट ऑफ ऑफिस करो। देखो क्या, लेट मी क्लैरिफाई राहुल, सर बोलते हैं आउट ऑफ ऑफिस करो, क्यों बोलते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर मी 4 AM इज आउट ऑफ ऑफिस। 4 बजे से लेके मैं 6:30, 7, 7:30 तक बिल्कुल कुछ नहीं, ना फोन ना ये ना वो, बस मैं, मेरा पेन और मेरा कागज। क्योंकि मैं पिछले 3 हफ्ते से 4 AM कर रहा हूँ सर, जिस दिन से सर ने बोला है। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ। तो करता तो मैं रूटीन जो भी है कॉपी पेंसिल से ही काम करता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे रूटीन वर्क में घुस जाता हूँ। हाँ, तो आप है ना वहाँ पे जो है अपनी टू डू लिस्ट बना के जाओ। क्या शाम को एक दिन पहले बना लो कि मुझे कल काम क्या करना है, और कोशिश करो कि अपनी पर्टेनिंग टू दिस प्रोग्राम यू डू ए टू डू लिस्ट। अब रूटीन में नहीं घुसोगे ना फिर, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग देयर यू डोंट हैव एनीथिंग, आपको पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप 2 घंटे के 3 घंटे के लिए जाने वाले हो, अगर आप होटल चेक इन कर रहे हो तब तो का फ्लो बनते बनते बन जाता है, वो तो एक अलग होगी 3 दिन की कहानी। जब आप 4 AM अगर कर रहे हो तो आप गो विद द एजेंडा ऑफ 2-1 कि मुझे इस चीज़ की PMS या FMS बना के आनी है कुछ है, देन थोड़े टाइम के बाद आप फोकस्ड हो जाओगे उस पर, और आज नहीं तो कल वो फिर कंप्लीट हो जाएगी। so whatever homework you can do at 4 AM, do it. बैलेंस जब आप बैठ के होटल चेक इन करते हो वो सुपर बूस्टर है, बट सुबह 4 बजे भी आपने जो करना है वो सारा का सारा होमवर्क पहले खत्म कर लो ना। आज जैसे परचेज की फ्लो चार्ट बनानी है और परचेज की फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट बनानी है, तो एक बार 4 से 8 बैठोगे, ये दोनों तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? कल बैठ के ऑर्डर टू कलेक्शन कर दिया, यस। परवीन जी, आपने बोला कि 4 PM नहीं जाता, AM आउट ऑफ ऑफिस। यस, में आप राउंड द क्लॉक नहीं जाते थे, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आउट ऑफ ऑफिस? नहीं, मैं सुबह तो उस समय एक सेकंड, आपने अगर इनकी बात सुनी होगी, इस समय इन्होंने बोला कि मैंने ना 1.5 महीने 2 महीने बाद इनको बोला 4 AM।
वो समझ गया सर मैं। मैंने आपको कब बोला? आई थिंक हमारे कोर्स से ही 4 AM चालू किया आपने। हाँ, तो क्या होता नहीं है, था। हाँ उस, होल डे भी उन्होंने किया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। अरे सुन लो बात, मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ। मैं 1 महीने बाद ही बोल दिया था। नहीं, 4 AM तो हमारे बैच से शुरू किया, उससे पहले 4 AM नहीं होता था। उससे पहले 4 AM नहीं होता था, नहीं होता था, ये डोंट 8 AM होता था खाली। उससे पहले 8 AM होता था। इनके बैच से शुरू किया 4 AM, और हमारे बाद होटल चेक इन शुरू हुआ है। और उसके इनके बैच में मैंने होटल चेक इन था ही नहीं। नहीं था। न्यू एडिशन है। ये न्यू एडिशन है, यू आर ब्लेस्ड। सो लेट मी आंसर सर क्वेश्चन। बताओ कैसे मिलेगा, एल्मनाई से, बोलो कैसे मिलेगा? एल्मनाई से आपके बाद एल्मनाई हो जाती है, उससे मिलेगा। एनीवेज, टू आंसर, एलुमनाई वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें आपको रेगुलर जो नई वर्कशॉप में हो रहा है अच्छा अपडेटेड वो सारा का सारा आपको अपडेटेड रहेगा। सर लेट मी आंसर सर क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, आप पूछ रहे थे कि भाई आप 4 बजे चले गए, उसके बाद क्या करते थे? तो मेरा 4 AM का रूटीन ऐसा था, मैं 4 से 6:30 7 तक काम करता था। फिर मैंने वहीं पे जिम ज्वाइन कर लिया था, वहीं से मैं जिम विम करके नहा धो के घर 8:30 9 बजे जाता था, और उसके बाद मैं फिर उसके बाद ऑफिस 10:30 11 बजे जाता था। अगर कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है, उस समय क्या होता था, मीटिंग है ना, बैचिंग पे नहीं करते थे उस समय। तो भाई किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया था जब ऑन द टाइम, क्योंकि हम फायर फाइटिंग पे चलते थे। अब तो मीटिंग भी नहीं करते हैं। उस समय मैं बीच में 4 AM के बाद दिन में भी जाके ग्राउंड प्लाजा बैठ जाता था और वहाँ पे भी काम करता था। तो मेजरली वहाँ से धीरे धीरे ऑफिस की आदत छूट गई। अब सिर्फ ऑफिस नहीं जाता हूँ तो ये बच्चों का फ़ोन आता है, सर चाय पीने तो आ जाओ। अभी 2 दिन सर, मैं 2 दिन 3 दिन अकोला अभी नया उसके लिए गया हुआ था। मैं ये कॉल में बोला, सर ऐसा लग रहा है पता नहीं आप तो धंधा ही छोड़ दिया। बोला आपने, चला हम संभाल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि पाओगे ही नहीं। शी कॉल्ड मी एंड सेड लाइक दैट। मैंने कहा ठीक है, आई विल कम। आपकी ये क्या क्या काम संभाल लेती है? मेरी शेड्यूलिंग संभालती है पूरा, और 1-2 महीने उसके अलावा मैंने उसको ये एक कलेक्शन इंजन का काम भी मैंने दे रखा है। दैट्स 2 मेजर थिंग्स शी हैंडल्स, एंड माय मीटिंग्स एंड ऑल दैट शी हैंडल्स मोस्ट ऑफ दैट। एंड ऑफिस में जितना डेलीगेशन होता है वो सारा ये के थ्रू होता है। दैट ऑल हैज टू बी डन बाय हर ओनली। और पर्सनल काम संभालती है? 100%। मेरी मदर को फ़ोन करना हो, मेरी वाइफ को करना हो, ड्राइवर को बुलाना हो, ड्राइवर को लोकेशन देनी हो कि लोकेशन देनी हो मतलब अब उसको ये पता होता कि सर को कहाँ जाना है, तो शी कॉल्स द ड्राइवर, सेंड्स द लोकेशन, सेंड्स द एड्रेस, सो दैट व्हेन आई सिट मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा कहाँ जाना है। 90% अगर शेड्यूल्ड है कोई चीज़ तो मुझे ये बताना नहीं पड़ता। मुझे उसको ये पता होता कि सर को ड्राइवर लेके जाना है कि बिना ड्राइवर के जाना है, कैसे जाना है। शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो वो आपको बता देती है, सर यहाँ चले जाओ और यहाँ ऐसे जाओगे। हाँ, आज आप मेट्रो से जा रहे हो, आज कार से जा रहे हो। एग्जैक्टली, वो मुझे नहीं बताती, वो सिर्फ मेरे ड्राइवर को बोल देती है सर को वहाँ लेके जाना है तुझे, तेरे को एड्रेस पता है, एड्रेस दे रही हूँ, नहीं तो ये लोकेशन भी दे रही हूँ। और माय ड्राइवर्स नो हाउ टू ड्राइव, मतलब उसको गूगल चलाना आता है, मैप। वो मुझसे पूछता नहीं है, गाड़ी में बैठता है, ऑन कर लेता है, दर दर चलता रहता है। और क्या क्या काम दे देते हो पर्सनल? सारे काम, मतलब आप वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ ऑलमोस्ट सब चले जाता है। लाइक मतलब मेरे फैमिली का काम भी पूरा जाता है। माय डॉटर्स नाउ ओनली कॉल हर, अगर कोई काम होता है तो मुझे नहीं कॉल करती। वो कहती है वो प्रिंट आउट निकाल लाना, या मान लो कोई मेरे स्कूल की फीस, वो कोई आजकल सब कुछ ऑनलाइन आता है स्कूल का भी, वो चाहिए, कुछ और चाहिए, या स्कूल की एप्लीकेशंस कुछ डालनी है, कुछ भी मतलब रिलेटेड दे कॉल। कुछ मान लो अगर कोई रबड़ लाना हो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए तो वो उनको बोल देती है, वो घर पहुँच जाता, मुझे पता भी नहीं चलता। सो ऐसा वो बुरा नहीं लगता उनको कि ये सब वो ही कर रहे हैं मतलब? हाँ, शुरू में लगता था। शुरू में मम्मी कहती थी क्या तूने बना दिया, बोला मेरे को भी फ़ोन करना पड़ता है। मैंने कहा आपको रिजल्ट चाहिए, या बोला नहीं तेरे से तो काम होता नहीं था, ये बात तो पक्की है। शी यूज्ड टू फर्स्ट, पहले जो आता था वो बोलती थी मैं हाँ कर दूंगा, वहाँ घर गया, आई मिस्ड इट, मैं भूल गया। बट अब प्लीज़ वो चीज़ अब नहीं होती। ऐसा आपके साथ होता है कि लोग काम देते हैं आपको घर वाले और आप भूल जाते हो? यस। तो आपको काम करवाना है तो ये नहीं चलेगा, और सारा काम सेट होके हो जाए, सो इट्स मोर इफेक्टिव दिस वे। एंड व्हाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस? आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, डिनर खाना है, सो गो डू दैट। Yes, you have to align them. I understand that in Haji now expansion, sales.
एक्सपेंशन में आप जो बता रहे थे आपने क्या किया अभी, वो नया प्लांट या क्या कर रहे हो? एक्सपेंशन में मैं परसों सुबह ही आया था. वी आर कमिंग विद अ न्यू प्लांट इन महाराष्ट्र. ऑलरेडी एक मेरा एग्जिस्टिंग प्लांट है अकोला में. अकोला इज नियर नागपुर, और वहाँ पे हम एक नया प्लांट लेके आ रहे हैं. वो दैट वुड बी द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ एशिया फॉर द प्रोडक्ट व्हाट आई एम डूइंग इन. ऑसम, ब्रिलियंट. आज ही मॉर्निंग में मैंने नितिन को भी बताया. वी हैव अ सेशन, तो वी मंडे मिलते हैं, आपको पता होगा तो हिसाब से. What about the government and license work dealing with sales tax, excise? माय अकाउंट्स पीपल आर परफेक्ट इन दैट. उनका पूरा एक शीट्स बनी हुई है. टेंडेंसी होती है कि मालिक से बात करेंगे. वो जब आते हैं, नहीं कंसल्टेंट्स हैं, और बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में जब उनसे अगर नहीं संभलता तभी मेरे पास कोई चीज़ आती है, अदरवाइज मेरे पास नहीं आती है. प्रोडक्शन में जैसे आया सेट ऑफ मशीन जो इतने टाइम पे इतनी प्रोडक्शन निकालती है, तो उसको कैसे डबल होगा, वो कैसे बेटर होगी? सी मेजरली क्या हमारे केस में, आई डोंट नो, केस टू केस डिपेंड करता है. मेजरली जो मेजर इलेक्शन में और प्लानिंग की कमी होती है. जैसे क्या होता था पहले, प्रोडक्शन कैसे डबल हो गया, आप ये पूछना चाह रहे हो, जब आपकी मशीन्स वही है. आई गॉट दैट. यू वांट टू से दैट कि आपकी वही मशीनें थी, वही थी, तो आपने प्रोडक्शन डबल कैसे कर ली. सो प्रॉब्लम क्या होती थी पहले कि हमने कोई प्लानिंग देते नहीं थे उनको, वीकली प्लानिंग नहीं देते. नाउ आवर कंपनी रन्स ऑन 52 वीक्स. वी डोंट हैव मंथ्स इन आवर, ओनली सैलरी के अलावा और गवर्नमेंट कंप्लायंस के अलावा हमारे यहाँ मंथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सिर्फ 52 हफ्तों में ही काम करते हैं हम. सो व्हाट हैपेंस कि हम पहले कुछ नहीं देते, रोज सुबह लिख के देते, ये बना देना, वो बना देना, ये जैसा ऑर्डर था वैसे कर देते थे. कोई शीट नहीं होती थी, इन्वेंट्री का कोई प्लानिंग नहीं होता था, कुछ नहीं होता था. तो उस समय क्या होता था, उसने जो लगाया, पता चला कि 10 चीज़ों मिला के एक चीज़ बनी, 9वीं चीज़ नहीं है, तो रुक जाती थी वो काम. फिर उसको हटाया, फिर और 11वीं चीज़ लगाई. ऐसे करते करते बहुत सारी इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाती थी और प्रोडक्शन हैम्प हो जाता था. और लेबर भी बहुत, उनकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती थी, क्योंकि बार बार मशीन से चेंज करो या वो सब चीज़ें चेंज करो, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत हैम्पर हो जाती. सो फुल किटिंग, एक सेकंड बता दो, क्योंकि ये लोग सब उछलेंगे जैसे ही मैं फुल किटिंग समझाऊंगा थोड़ी देर बाद. जब मैंने किटिंग पे पहुंचे नहीं अभी, अच्छा प्रोडक्शन पे नहीं आया अभी. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फुल किटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, पीएमएस. देन दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. यस, जो आप बोल रहे हैं इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर इनको एक बार बता दो. फुल किटिंग में जब आपने फुल किटिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे, मैं आपको एक सेकंड समझाता हूँ. फुल किटिंग क्या होती है? फुल किटिंग मतलब नथिंग विल स्टार्ट अंटिल एवरीथिंग इज अवेलेबल. अगर 100 पार्ट्स चाहिए एक चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, या 100 चीजें चाहिए एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग शुरू नहीं होगी जब तक कि वो 100 इंफॉर्मेशन ना हो या वो 100 पार्ट्स ना हो. तो अगर वो 100 पार्ट्स नहीं होंगे तो वो प्रोडक्शन में, ठीक है, ये समझ में आया? मैं और यस, नो, आई जस्ट एक लेमैन एंगल समझा देता हूँ. अगर आपको चाय बनानी हो, अब सब कुछ साथ में रखा हो, चाय पत्ती, चीनी, दूध, गैस सिलेंडर, तो चाय कितनी जल्दी बन जाएगी? इफ एवरीथिंग इज ऑन प्लेस. फॉर एग्जांपल फॉर लेडीज, अब आप समझो कि आपको चाय बनानी है. अब नाउ यू डोंट नो दैट यू हैव मिल्क, और यू डोंट नो यू हैव शुगर, और यू डोंट नो आपकी एक चीज मिसिंग है. सो व्हाट इज द टाइम इट विल टेक टू कवर दैट? या बनेगी नहीं, या फिर आप बोलोगे अब चाय क्या, तो चाय पत्ती नहीं, जो कॉफी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट इज हैपनिंग? चाय तो वेस्ट हो गई और कॉफी की तैयारी कर रहे हैं, तो 10 मिनट में बनना तो 20 मिनट में हो गई. या फिर आप जब तक नीचे से मंगाओगे चाय आएगी. सो इट इज लाइक कीपिंग ऑल द इनपुट्स इन अ राइट टाइम इन राइट प्लेस इज फुल किटिंग. सर ऐसे ही ना? सो आई थिंक यू कैन रिलेट विद दैट एग्जांपल ऑफ टी, हाउ इट मेक्स लाइक. बिल्कुल नहीं होती. जब आपकी इन्वेंट्री शीट लग जाएगी, आपका वर्किंग कैपिटल नीचे आ जाएगा. यस सर. और आप अभी भी रोज सुबह 4 बजे उठे? 100%. लास्ट ईयर आई हैव डन 222 डेज, 222 दिन मैंने 4AM किया है. और आप अभी भी, अच्छा आपके टाइम में आउट ऑफ ऑफिस था ही होटल वाला? बिल्कुल था. नहीं, आउट ऑफ मतलब वो आउट स्टेशन वाला नहीं था. होटल चेक इन वाला नहीं? एक बार लेकिन हमने किया था, सारी टीम ने क्राउन प्लाजा में रुके थे, एक बार किया था हमने. हाँ, एक बहुत लास्ट क्वेश्चन, मैं अजय कपूर जी से मिला था, आपके फ्रेंड हैं, आपके बैच के थे. 100%. हाँ, तो उनसे वो आपके बारे में मेरे को 2-3 दिन पहले बता रहे थे. यू टेलिंग यू दैट यू गाइस आर मीटिंग, एक मंडे को आप लोग मीट करते हैं. मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह आज. हाँ, तो प्लीज जरा उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा बताएंगे कि क्या करते हैं उसमें. अच्छा, आप लोग भी तो मिलते होंगे ना? नहीं, हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग था. उन्होंने यू हैव साउथ नाइस ग्रुप मीटिंग्स जो आपकी होती हैं, सो वो दोस ग्रुप मीटिंग्स will later on which will convert into that fact is that आपका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा. बट वो डिपेंड करता है आपका. आई थिंक पहले तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपेंड, आई गेस. हाँ, ये हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ इतना स्ट्रांगली. आई थिंक नितिन एंड राकेश इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट.
Yeah. So what to answer this question, what we do is like जैसे आपकी ग्रुप मीटिंग होती है, हमारी भी ग्रुप मीटिंग, हम नॉर्थ में थे लोग, तो नॉर्थ वालों के 8-10 लोग थे उस समय, नॉर्थ वाले अजय कपूर जी भी, राकेश, नितिन और ऑल दैट वाज देयर। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई कोर्स खत्म होता चले गया, हम तो बहुत पावरफुली ड्राइव कर रहे थे अपनी मीटिंग और बाकी नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ को छोड़ के ईस्ट वेस्ट साउथ सब बंद हो गया था, सारे बंद हो गए थे। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज देन दे फेल्ट दैट वी आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दे जॉइंड आवर ग्रुप। नॉर्थ के ग्रुप में सारे लोगों ने मिल गए, हमारे बैच में जितने भी लोग थे वो सारे उसमें आ गए। एंड नाउ व्हाट वी डू इज वी मीट एवरी मंडे 7 AM, 7 बजे सुबह हम, 7 is 7 not 7-1 also, we meet every Monday 7 AM and from 7 AM we are working on personal productivities, on that, how to enhance things and then सारा कोर्स जो है ना वो सारा एक बार जितना भी हुआ था वो एक बार पूरा रिव्यू कर लिया। हाँ, पूरा कोर्स हमने वापस रिव्यू कर लिया और जिसको जहाँ बॉटलनेक किसी की है या कोई हटका हुआ है तो उसको हेल्प करके निकाल दिया बाहर। और सब अजय भैया को भी, मतलब ही माइट हैव सीइंग पूरा सिस्टम उनका रिवैम्प कर दिया। नितिन राकेश के यहाँ पे पूरा सिस्टम हम लोगों ने सब मिलके एक दूसरे की, कोई कहीं ठीक है कोई कहीं ठीक है, वहाँ से रिवैम्प कर देते हैं। एंड सो दैट हैपेंस दैट वी टेक स्टैंड फॉर ईच अदर टू कंप्लीट द वर्क फॉर Brilliant. एंड सो इट्स लाइक ये एक बार दिखा दें सबको, everybody wants to see this. हाँ जी, you know him? He's your friend? Okay. So you can talk to him about me. रख दो। So let's just have a look at, आप सब पूछ रहे थे ना FMS दिखा दो। Yes. So अभी ये एक ये FMS है। Now one thing is there. So this ऑन वन खोलना, इसको वो कर लो, कंट्रोल माइनस, एक सेकंड, कंट्रोल नहीं, बोर्ड तो साइड में कर लेते हैं। सर कह रहे हैं कंट्रोल माइनस करके चेक कर, कंट्रोल माइनस तो कर लें ये। अच्छा ठीक है, चलो, यू विल बी एबल टू सी दिस। सो आई वांट यू टू कीप वन थिंग इन माइंड, ये जो फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट है, थैंक यू, दिस इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट। Yes. बिकॉज इनको बैच पास आउट करके कितना टाइम हो गया? साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। तो 1 साल बाद जो आपकी फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट बनेगी वो ऑल्टर कर करके ट्यून कर करके इट विल गेट मच बेटर। सो डोंट गेट हैसल्ड बाय दिस, जस्ट सी द फ्लो ऑफ वर्क कि हाउ डज इट वर्क। एक बार पूरा मोटा मोटी देख लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ माई ऑर्डर प्रोसेसिंग शीट। सभी के ऑलमोस्ट कॉमन सी होती है कि ऑर्डर आने से लेके माल जाने तक का एक ही शीट पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि भाई क्या हुआ है उस ऑर्डर का। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 फरवरी को मेरे पास ऑर्डर डेट है, 1 फरवरी को ऑर्डर आया, दिस इज पार्टी नेम, किसका आया, ऑर्डर किससे लिया गया, ऑर्डर को प्रोसेस किसने किया। ऑर्डर आने के बाद हमारे यहाँ 6 घंटे का टैट है उसको प्रोसेस करने का, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर फॉरवर्डेड टू डिस्पैच डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 तारीख को ऑर्डर आया और ये 2 तारीख को फॉरवर्ड होगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो 0 दिख रहा है 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। सो गाइस, इस शीट में ना ढेर सारे प्रोग्रामिंग कर रखी है क्योंकि MIS का लड़का आ गया, उसने हेल्प कर दिया और इसको अपग्रेड कर दिया। सो सम ऑफ द थिंग्स right now you don't have to do. You don't understand, आप उसमें मत जाओ, आप सिर्फ इसका फ्लो को देख लो तो it will help you to understand how does it flow. So ऑर्डर फॉरवर्ड हो गया, डिस्पैच में गए, तो अब डिस्पैच का प्लान डेट कब है? वी हैव 3 days लीड टाइम टू डिस्पैच। हमारे केस में 1 को आया तो 4 को डिस्पैच होना है। अब वो मान लीजिए एक्चुअल डिस्पैच 4 को हो गया तो ये ग्रीन हो जाता है, और अगर ये 4 को नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल चेंज कर इसको फिर ऑनलाइन है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग इन माय कंपनी रन्स इन 4-5 कलर्स, दैट्स इट। होल कंपनी, मुझे सिर्फ कलर के अलावा कुछ देखना नहीं होता है। यहाँ पे लाल या नीला या हरा जो भी है वो मुझे वो किस पे फोकस करना है वो देख लेता हूँ। उसके बाद ये डिस्पैच कैसे हुआ, अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ तो ट्रांसपोर्ट नेम, LR है तो LR नंबर, इनवॉइस अमाउंट, और इनवॉइस अगेंस्ट अगर सी फॉर्म है, एग्जेम्प्टेड सेल है, कोई टैक्स का है, क्या है, नीचे बता, ये ले लो, ये ले लो, ये बीच का बटन दबा देना। बिल्कुल बिल्कुल जी, सब डाटा एंट्री का लड़के पीसीज भरते हैं और ये कलर्स इंटीमेट के अलग अलग पीसीज भरते हैं, जो आपने अभी सीखा होगा व्हेन, हु, व्हाट, नाउ। हो गया।
सी नो व्हाट वी हैव डन इज डाटा एंट्री ऑपरेटर ही है. डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास जैसे जैसे चीज़ें आपके बढ़ेंगी ना, तो आपके पास काम बहुत कम हो जाएगा, आपके स्टाफ को कम करना पड़ेगा. तो वो उस समय क्या होता है कि आपकी पीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर ना कुछ कुछ टास्क के लिए सेम हो जाते हैं. So what will happen? What एक happens minute. is this. Guys, what I'm saying, okay, so how this works is that शुरू में अगर आपने पीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर कोलैप्स कर दिया तो that's not going to work. शुरू में आपका सारा डेटा कौन एंटर कर रहा था? शुरू में लोग कर रहे थे, वो पीसीज बोल सकते थे, अब डाटा एंट्री थे, पीसीज नहीं थी वो एक्चुअली. वो बाद में वो पीसीज और डाटा एंट्री हमने कुछ कुछ पार्ट्स के लिए सेट कर दिया. Okay. So I was just trying to say you, तो देखिए आप इनवॉइस अमाउंट, ऑर्डर रिमार्क्स कंप्लीट हो गया. सी इज लाइक कंप्लीट, ऑर्डर कंप्लीट हुआ या पार्ट गया, अगर आधा गया तो पी लिखा जाता है या पार्ट हो जाता है. ईमेल उसको गई कि नहीं गई उस ऑर्डर के बाद, उस ऑर्डर का तो उसको एसएमएस गया कि नहीं गया, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, बिल का ड्यू डेट कब है, फॉलो अप डेट क्या है, पेमेंट कब रिसीव होनी है एंड पेमेंट बाय. तो ये पूरा ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक का एक ऑर्डर को मुझे कहीं पे भी ट्रैक करना है. फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. सो हाउ आई ऑपरेट दिस. हाँ क्या लिखा है? नहीं, इसने अभी सैंपल बनाया है यहाँ पे, अभी अभी बनाया है. दिस हाउ, बिकॉज वो लाइव शीट में दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए हमने एक सैंपल शीट आपको उसको ब्लैंक करके दिखाया. दैट इज व्हाट माय. So अब ये एफएमएस दिख गई. अब इसमें एक बार बताओ, क्या नॉन कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है? हेलो, किस बात पे रुक रहे हो? क्या? हाँ, मतलब सर वो डिसीजन बॉक्सेस. वो फ्लो चार्ट से करें. इसमें डिसीजन बॉक्सेस क्या है, हमने सर ने जैसे बताया, दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ दैट. एक मिनट, आप ना अभी जो सुनो, एक मिनट. जब आपका एमआईएस बन जाएगा ना, तो ये सारा ठीक होके सेटल कर जाएगा. अभी आपको शुरू में डिसीजन बॉक्सेस डालने हैं, आपको यस और नो करने हैं, उसके बाद में ये सब बन के सेटल हो जाएगा. आपने जब शुरू किया था डिसीजन बॉक्सेस डाले थे, हमने व्हेन, हु, व्हाट जो सब सिखाया था, सब वैसे बनाए थे, डाले थे. और अगर वो नहीं करते तो ये नहीं बनता. और अगर आप ये बनाना चाहते हो तो वो करना पड़ेगा. ये अभी आप नहीं बना सकते. कैसे बनवाऊं आपसे ये? आप पहले दिन कार में बैठे हो, मेरे को कार चलानी सिखानी है आपको, और आप बोल रहे हो सर मुझे बताओ कि मोबाइल पे बात करते हुए हाथ छोड़ के मैं हाउ डू आई जंप रेड लाइट्स. अरे आप पहले ये समझ लो क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सा है. अभी मैं क्लच बोलता हूं, ब्रेक दबा देते हो, ब्रेक बोलता हूं, क्लच दबा देते हो. याद है वो दिन? यस नो चल रहे हैं सर. सो वो पहले क्लच और ब्रेक सीख लो, उसके बाद मोबाइल. आज आप मोबाइल पे बात कर लेते हो ना? यस, गाना भी एडजस्ट कर लेते हो, एसी भी एडजस्ट कर लेते हो, मोबाइल पे भी बात कर लेते हो. वो जिस बंदे ने आपको कार चलाना सिखाया था, वो ये सब नहीं सिखाता. वो सिखाता है, वो अपने आप सीखते हो. उसका काम है आपको कार चलाना सिखाना. मैं आपको कंपनी चलाना सिखा दूं? इतना आगे मत भागो. इनका इन्होंने एक बेसिक चीज बताई आपको कि जब प्रोग्राम चल रहा हो तब आपने क्या किया. जब प्रोग्राम चल रहा था वो बता दो. बताया था, मैं सुबह 4 बजे उठता था और फिर चले जाता था होटल में, कागज में काम करता था. और क्या काम करते थे? जो सारे जितने, भाई बताना कीर्ति क्या करता था बताओ. आई थिंक क्योंकि इन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम यहाँ नहीं किया है, बट वहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने किया है. सो शी विल एबल टू टेल यू बेटर. बताओ. जो सारी एफएमएस या फ्लो चार्ट्स होते थे, कुछ भी एवरीथिंग जो हमारे सिस्टम से होती थी, सर सुबह 4 बजे पेपर पे उतार के लाते थे. उसको फिर मैं अपना कंप्यूटर में करती थी, उसके बाद वो फिर सिस्टम से अप्लाई होता. So just what is happening in the class, keep up pace with that. So sometimes like I'm not computer friendly guy, so those who are computer friendly can do it. But मैं पेपर पे अच्छे से काम कर सकता हूँ. मैं बस खड़ा कर बनाता था और चला देता था. अभी फॉर इंस्टेंट इन माय कंपनी, आप मेरे से कल तक का कुछ भी पूछोगे, इनफैक्ट आज तक का भी शायद कुछ भी पूछोगे, मतलब आप कुछ भी, मतलब आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता होगा ना, कोई भी सवाल, तो आई विल बी एबल टू आंसर बाय हियर इटसेल्फ. मैं चाहे लंदन हूँ, चाहे मैं चाइना हूँ, कहीं भी कुछ भी सवाल हो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, लाइक कुछ भी, मतलब आप कुछ भी पूछो किसी भी कंपनी में क्या होता होगा, कितनी आउटस्टैंडिंग है, एवरेज कितने आउटस्टैंडिंग क्या, मुझे ये बता सकता हूँ कि मेरे ऑफिस में कल तक के कौन कौन से कुरियर आए, किसको हैंडल हुए, किसने उसको कौन सी नंबर फाइल में लगाई. मैं यहाँ बैठे बैठे वो भी बता सकता हूँ.
आप दिखाना है कोरियर शीट। तो मेरा आपका प्रॉमिस था ना कि आपको ये मालूम होगा कि कौन सा टॉयलेट आज साफ नहीं हुआ, कौन सा कुरियर आज नहीं गया या गया। आप बताओ, ये डिटेल्स हैं शीट पे? हाँ, है। ये ऐसे ही प्रेशर कुकर मांग रहा है। नहीं सर। कोरियर शीट दिखा दो एक बार। हाँ सर ये लिस्ट ऑफ पेपर ये खोल दे बेटा, ये दिख नेट से ये- कनेक्ट नहीं ये शीट दिख क्यों नहीं रही? एक बार नेट से कनेक्ट करके होगा। कर दिया। So anyway, let's just believe him for this, or you want to see it only? सर का दूर हो जाएगा। So later on, Let me just tell you, these are my names of the sheets which I've made. so Abhi, don't look at this right now. I don't look at it, you're Okay. confused. I will show you and I will tell you that we will create a master list of, हाँ ये बंद कर दो यार, क्यों मार जान निकल जाएगी इनकी। एक FMS तो बन नहीं रही। ये देखो सर एक कोरियर ये देखो इनवर्ट कुरियर। एक मिनट गाइस, so my promise to you is you will have the same करंट के लिए। system, so don't worry. सर ये 13 फरवरी है, आज ही है ना 13 है? मैं तो यही हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि 13 फरवरी को ब्राइट स्टार इंडस्ट्री से प्रणय इम्पैक्स पे टैक्स इनवॉइस आई है, किसको हैंडओवर हुआ है और कहाँ हो हैंडओवर है, और आगे का अभी काम पेंडिंग पड़ा है। मतलब जैसे पीछे जाए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कोई लेटर आया है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कोई लेटर आया है। कब आया है? पहले क्या होता था, हम कागज ही ढूंढते रहते थे पूरे पूरे दिन ऑफिस में, मिलते ही नहीं थे, और लड़के बोलते थे सर मैंने इसको दिया था, मैंने उसको दिया था। अब किसको दिया उससे कोई लॉजिक ही नहीं है। हैंडेड ओवर टू हुम, आया नहीं है। अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब किसी के शादी का भी कार्ड आया तो वो भी लिखा है मैरिज इनविटेशन, किसको हैंड ओवर किया? मेरे को हैंड ओवर किया किसी ने, तो इसी के पास होगा। वो मेरे को दिया, बोला अब मेरा उसने लिख दिया, मेरे को दे दिया, अब मैं तो दोबारा मांग भी नहीं सकता उससे। Okay guys, so any more questions, because we have to move on. Last 1 or 2 questions please. 6 o'clock आई एम एट होम, 6-6:30 मैक्सिमम। नहीं वैसे तो मैं घर 2 बार जाता हूँ दिन में अब। मतलब मैं सुबह 8:30 बजे घर चले जाता हूँ और 11 बजे वापस ऑफिस जाता हूँ, और उसके बाद अगर वो भी जाना पड़ा, नहीं तो मैं सेल्स मीटिंग पे जाता हूँ। मेजरली नाउ आई टोटली एंटर इनटू हार्डकोर सेल्स, बिकॉज जो हमारा विजन है वो बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे उतरना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम वेकेशन शुरू कर लिए नहीं किए? हाँ वेकेशंस इतनी रिगुलसली नहीं हुई है टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ बट हो गई है, नॉट एज रिगुलसली एज राहुल सेज, हाँ बट आई एम फ्री। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी भी कोई भी बुलाए, कहीं भी कुछ होता हो तो बिल्कुल बिंदास रहते हम। हाँ जी प्लीज। What is your company 10-year vision and what is your personal vision? You want to see my vision board? You tell them. Screenshot दिखा दो। I'll just 2025 we have a 5,000 crores vision revenue, that would be, pardon? Where are you right now? We are at 87, 88. And where were you when you joined this course? 87. हाँ, Where were you when you joined this course? when 1 year before we were around At the beginning of the program. beginning of the course we were around 52-53 के आसपास थे। रेवेन्यू से ज़्यादा, रेवेन्यू वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। फ्रॉम 52 to 87 से मेरा कोई खास फर्क, Percentage growth in profit or no doubt that. 150%, 150%। वो ऑटोमेटिकली आपने वो गैप अभी ना 1 मिनट, अभी आप लोगों को 1 मिनट, 1 सेकेंड। आफ्टर सम टाइम, हेलो, आफ्टर सम टाइम you will stop thinking about your top line. When I start sales, you will know the top line doesn't matter and the only thing that matters is the कितना पैसा जेब में रख के घर ले गए, उससे फर्क पड़ता है। विजन बोर्ड ऑफ प्रणय इम्पैक्ट्स, यू कैन सी दिस। So the ideals become the rivals. Till now, जब तक वो नहीं होंगे हम छोड़ेंगे नहीं. So that was our punchline. What's that? The ideals become the rivals. So if Warren Buffett is my ideal, so I want to become his rival. So that's what. So we have related everything like best processing 100. For example, best system-oriented company
driven for which is the best one. So we consider McDonald's is the best one. So we have this is ideal for this system. Every ऐसे हर किसी के लिए ऊपर कर दो. 100% debt free company. Saint Gobain, I don't know how many of you know that. So 350 countries में 350 years हो गया है. कोई भी country में इनका लोन नहीं है. एक भी रुपए का कोई भी country में लोन नहीं है. आप you can understand. 100% debt free company. It's a company loved by all. Infosys is a company. अभी recent में थोड़ा छोड़ दो बाकी. It is a company which is loved by all. So like value based company, Tata is our ideal for that. So my company would be listed in BSE by 2017. This is October. Awesome. And 2019 in National Stock Exchange. So what I said you that we are putting a plant now that will give us a market share of 35% और उसका deadline है हमारा 31 March. And there's a 35% market share in Pan India में हम ले आएंगे. So Steve, so we'll be billionaires club हम बना रहे हैं. So when I do manifestation, you'll understand what vision boards are. So this is called a vision board. How many of you have done manifestation? So you understand my vision boards? Yes? So this is what vision boards are. तो मैंने वही बोला कि जो भी आप मतलब anything you can think of, I can just यहाँ खड़े खड़े मैं सब कुछ कंपनी का कर सकता हूँ. That is autopilot, Rahul. That is autopilot. So now you can graduate का साइन कर दोगे मेरी सर्टिफिकेट में. आपको तो मिल ही गया था. So great, excellent. Thank you so much Thank for you your very much. contribution. Thank you all of you. Great. Take care. Thank you very much. Thank you ji. Thank you all of you. So Thank you, Kirti. my number. Number लिख दो. But please one request, please message or WhatsApp me because I don't pick unknown numbers. So before and just give a reference of this course. Yeah, and one more thing, please. If anybody wants to go, please go in a slide group. You can't keep calling up and say, I want to talk, 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 because that disrupts anybody's schedule. And later on, tomorrow, someday, you will also be standing here and sharing. And this is not one platform. There are various groups you will share with. So it gets kind of crazy. Okay? We'll catch him at 4, sir. Yeah, you catch him at 4. वहाँ सीधा पहुँच जाओ ना, problem ही नहीं है. प्लाजा पहुंच जाओ. मैं 2 हफ्ते से बाहर था. I was little less, but अभी मैं वहीं जाऊंगा कल से वापस. आप लोग कौन जाता है ग्राउंड प्लाजा? आप में कुछ मेरे से पूछने की जरूरत है. वहाँ जितने भी 2 वेटर्स होते हैं सुबह जनरली, आप लोग जो भी जाते हो 2 ही सुबह मिलेंगे. आशुतोष मिलेगा, सत्यवान मिलेगा, वीरेंद्र मिलेगा. और मैं बैठता हूँ जहाँ डेजर्ट्स अगर लगता है, आपने कभी देखा, मैं दिखूंगा नहीं किसी को. डेजर्ट लगता है ना वहाँ पे, उसके पीछे एक लॉन्च है उनका बड़ा सारा. मैं आपकी ग्रुप मीटिंग होती है. मैं कई बार जब जिम से निकलता हूँ मैं देखता हूँ आप लोगों को ग्रुप मीटिंग करते हुए. मैं सुबह 6:30 बजे तक वहाँ रहता हूँ. उसके बाद आप जिम में पूछना प्रवीण जी कितने बजे आएंगे, वो बताएगा 6:30 6:35 पे ऊपर आएंगे. सो एवरीवन विल रिलेट. कुछ भी पूरे होटल में किसी भी पूछ लेना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा. थैंक यू. Great, ji. Thank you.